Hi everyone, a very warm welcome. Thank you so much for joining us in this session this evening. My name is Sonali Shiblani. I'm a pregnancy and postnatal counselor and I'm from Mumbai. I'm going to be talking to you a little bit later, of course, but my focus for the discussion will be pregnancy exercises. So, yoga, different poses, also breathing techniques. So that's of course coming up later, and you will hear a lot about me a little bit later. To begin with, I would like to say a very big thank you to CordLife, one of India's leading stem cell banks, which has organized this platform for us. I have also the privilege of having with me Dr. Preeti. And thank you so much, ma'am, for taking your time and sharing all the valuable knowledge with us. So, Dr. Preeti is going to be talking to you all about special care during pregnancy, especially in high risk cases. So, I'm not going to take up much time, but I will just give you a little brief of how the webinar will work. We have kept all of you on mute because the session is being recorded. And the good news is that you will get a recording link of this session. So you will be able to make all your notes later. I would suggest keep a bottle of water ready, take lots and lots of pillows and cushions and make yourself comfortable. And on the dashboard, you can see a question box. There's a section called questions. So we don't want you to be completely mute that way. We want you to ask a lot of questions. So whatever questions you have, please put it there. We would love to answer them. Before we close the session, all your questions will be taken care of. So I'm going to hand it over to Dr. Preeti. Thank you, ma'am, once again for being here with us this evening. It's our pleasure, and over to you. Thank you, Sonali, for that warm welcome and the good introduction. Good evening, viewers, and all my pregnant friends. Today, we are going to talk about the high-risk pregnancy, which majority of for majority of you is an unknown topic. High risk pregnancy nowadays is quite common because you know that now girls study a lot, they start working, they get married late, and they plan for a pregnancy later on, mostly after 30 years of age. So, automatically, the pregnancy falls into a high risk category because the mother's age is above 32 years. The first time pregnant lady doesn't know what it entails, and that is why we usually advise to have a pre-pregnancy counseling session. Like Sonali said, she's an expert with pregnancy and the postpartum. We also recommend a pre-pregnancy counseling session so that everything is done perfect right from planning it till the delivery and the postpartum period. So regarding the high risk pregnancy, I would want to enlighten you for about a few points. Majority of the pregnant girls know that pregnancy is a physiological process, right? It is not a disease. You're not visiting your consultant or your doctor because you have some illness. Pregnancy is not an illness. It is a part of body's physiology, body's own natural physiology. So natural to get pregnant and to deliver a baby. But whatever changes occur in the body, normally, you know, there's weight gain, there are a lot of changes which are external. Similarly, there are a lot of changes which are internal. All body systems like circulatory system, the skeletal system, the respiratory system, all systems change to adapt to the pregnancy for all 9 months. So, sorry, I started off just in English. I did not realize. But आपको बताने के लिए कि कौन सी प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क बोलते हैं. नॉट ओनली द एज, सिर्फ उम्र का सवाल नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज भी होते हैं. सो एक स्लाइड शो के जरिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है. सो आई नाउ रिक्वेस्ट सोनाली टू शेयर द स्लाइड्स विथ मी. ओके, तो हम ये स्क्रीनिंग क्यों करना चाहेंगे कि किसको हम हाई रिस्क बोलेंगे, किसको हम नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलेंगे. नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे मैंने बताया, एक अच्छा सा डाइट काउंसलिंग होता है, थोड़ा एक्सरसाइज का एडवाइस होता है और हम चेकअप करते हैं. हर टाइम आप हमको दिखाने आते हो, हम आपको बताते हैं कौन सा दवाई खाना है, क्या फायदा होता है इसका.
आपको कैसे खाना पीना है, क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे वेट गेन होने वाली है, और हम हमारी तरफ से सोनोग्राफी करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और पूरे 9 महीने तक हेल्दी प्रेगनेंसी पहुंच जाती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। जो छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या कभी हेडेक होता है, वो छोटी छोटी चीजें रूटीन विजिट्स में डॉक्टर आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। पर जो हाई रिस्क का मतलब होता है when it is hazardous to the health of the mother and the baby, मदर को भी उससे नुकसानी हो सकती है और ये बच्चे को भी नुकसानी हो सकती है। सो ये हाई रिस्क जिसको बोलते हैं, ये प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। Ma'am has to take an emergency call, so ma'am is going to be just back. In the meanwhile, थोड़ा बहुत जो बातें हम करने वाले हैं आज, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं आपके साथ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाली हूँ, और एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें दूसरी भी शेयर करूंगी, लेकिन पहली चीज जो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज के बारे में, वो ये है कि आपको हमेशा अपने डॉक्टर से परमिशन ले लेनी चाहिए। तो अगर आप अपने डॉक्टर से परमिशन ले लेते हैं तो आपको एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। आज जो एक्सरसाइज का हमारा प्रोग्राम है वो हम एक्चुअली प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। तो मैंने तो आज टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स एंड मैट वगैरह लगा ली है। अगर आप भी मेरे साथ ट्राई करना चाहते हैं तो, और आपके पास अगर योगा मैट है तो आप वो अपनी ले आइए, ताकि आप भी मेरे साथ थोड़े से पोजेस ट्राई कर सकें, थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकें, राइट? तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि जितना हम सीखते हैं जरूरी नहीं है कि हमको उतना याद रहेगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमको सही से याद रहता है, राइट? तो पहली चीज ये होती है कि आपको अपने डॉक्टर से परमिशन ले लेनी है। अगर आपने डॉक्टर से परमिशन ले ली तो एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ही आसान होती हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि एक्सरसाइज करते वक्त आपको अगर कोई भी तकलीफ हो, जैसे ब्लीडिंग, क्रैम्प्स, कोई भी डिस्कम्फर्ट, पेन वगैरह हो, तो बिल्कुल रुक जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। ये जो आपको डॉक्टर से पूछना है, हर विजिट पे पूछना चाहिए। जैसे कि अगर 5th मंथ में आपको परमिशन दे दी डॉक्टर ने, तो जब आप 6th मंथ के चेकअप के लिए जाते हैं तो आप दोबारा से 6th मंथ में भी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मैम क्या मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ या नहीं, राइट? अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्सरसाइज कभी भी प्रेगनेंसी में जब आप शुरू करते हैं तो खुद से नहीं शुरू करिए। मुझे पता है बहुत सारे वीडियोस वगैरह आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन एक सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज फॉर्म इज ऑलवेज बेटर। तो अगर कोई ट्रेनर या किसी के पास जा करके एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए, मैं आपको कह रही हूँ कि आज डेमोन्स्ट्रेशन आप देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा, और साथ साथ में आप मेरे साथ करेंगे तो इवन बेटर। तो लेकिन अगर ये नहीं होता आज, और अगर आप किसी ट्रेनर के साथ कुछ सेशंस कर सकते हैं, तो ये सुपरवाइज्ड सुपरविजन जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, राइट? इसके अलावा अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो सबसे सेफ, सबसे इजी आप वॉक करिए, वॉकिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, राइट? तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली ओके, तो यू कैन स्टार्ट विद अ वॉकिंग प्रोग्राम। चलिए, मैम हैज कम बैक, तो मैं बोलना बंद करती हूँ एंड वी विल लेट मैम टॉक। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला पेशेंट हाई रिस्क है और ये वाला पेशेंट नॉर्मल प्रेगनेंसी वाला है? तो जैसे मैंने बताया कि 30 साल के ऊपर की उम्र को हम सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी गिनते हैं। ऐसे फिर हम पेशेंट को पूछते हैं कि किसी को घर में डायबिटीज है, आपके फर्स्ट फैमिली ब्लड रिलेशन में किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड की बीमारी भी फैमिली में चलती है, पहले कोई पर्सनल हिस्ट्री, जैसे पहले आपने कोई सर्जरी करवाई है, पहले आपको रिपीटेडली मलेरिया, डेंगू, जॉन्डिस, टाइफाइड हुआ है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, कोई आप दवाई खा रहे हो, या पहले अगर ये दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है तो पहले कुछ तकलीफ हुई थी, पहले ज्यादा कंटिन्यूअस अबॉर्शन
अबॉर्शंस हुए 1-2 बार, या आपको बच्चा नहीं चाहिए था और आपने निकाल दिया है। तो ये सब हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि ये वाली प्रेगनेंसी आगे कैसे चलने वाली है। अगर सोचो आप मुझे बताओ कि मुझे पिछली बार प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गई थी, मुझे पाँव में बहुत सूजन आ गई थी, मुझे एंड टाइम में मैडम ने बेड रेस्ट करने को बोला था, तो मुझे अब की बार पता चलता है कि ये सेकंड प्रेगनेंसी में भी वही होने वाला है। अगर इसको प्रिवेंट करना है, तो अभी से हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? जैसे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और अगर आपको ब्लड प्रेशर आगे वाली प्रेगनेंसी में, तो हम आपको बताते हैं नमक कम खाओ, हर रोज वॉक करो, आप अपना वेट कंट्रोल में रखो। अगर ये हेरिडिटरी है तो हम इकोस्प्रिन वाला गोली लगाते हैं जो ब्लड थिनर है, जिससे बच्चे को ब्लड सप्लाई ज्यादा जाती है और बच्चा पहले से ही तंदुरुस्त होता है, ताकि एंड टाइम में अगर आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ती है तो बच्चे को नुकसानी नहीं होती है। तो ये जो अगर पहले सीजर हुई है ना, तो तुरंत पेशेंट पूछते हैं मैडम सेकेंड टाइम में सीजर हो जाएगा या नॉर्मल होने की शक्यता है? तो ये पहले कोई नहीं बताता है कि मैडम फर्स्ट टाइम में भी मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ गई थी, मैडम फर्स्ट टाइम में भी मुझे 5 महीने में डायबिटीज आ गई थी और मुझे डॉक्टर ने वेट कम करने को बोला था या वॉक करने को बोला था या मेरे शुगर्स बढ़ गए थे तो मुझे ये गोली दिया था। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले की काउंसलिंग से हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले की काउंसलिंग अलग होती है। उसको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, उसके फैमिली वाले को भी कभी बुलाना पड़ता है और उनकी भी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि उनको भी क्या ध्यान रखना है वो पेशेंट के लिए। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज, और आपको पता है ज्यादातर जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे बच्चे को कुछ तकलीफ हो गई या माँ को कुछ तकलीफ हो गई, वो किस में होता है? वो प्रेगनेंसी जो हाई रिस्क होती है उसी में ज्यादा होता है। इसलिए पहले हम थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं और उससे पता करते हैं कि ये हाई रिस्क है कि नहीं है। नेक्स्ट, और अगर ये जैसे आप पहली बार मेरे पास आए और मैंने पूछा आपका लास्ट पीरियड का डेट कौन सा था, मैंने आपको ड्यू डेट निकाल के दिया, मैंने आपको बताया इतना वजन बढ़ना चाहिए 9 महीने में, ये खाना चाहिए, फिर हम सोनोग्राफी करके बताते हैं कि ये प्रेगनेंसी में ऐसे दिख रहा है, बच्चे का धड़कन आ गया है, अभी आप घर में सबको बता सकते हो। तो एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन होती है कि ये सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है, इसका प्लेसेंटा कहाँ पे है। प्लेसेंटा का मतलब होता है मेली, जिससे कॉर्ड निकलता है और बच्चे को न्यूट्रिशन मिलती है। मदर से जो बच्चे को जाता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके साथ में अगर आपके यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड की छोटी सी गांठ है या ओवरी में सिस्ट है या पहले आपकी कोई सर्जरी हुई है, सोचो पहले आपका एपेंडिसेक्टमी हुआ है या गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ है या इंटेस्टाइन्स में कुछ सर्जरी किया है या ब्लैडर की यूरिनरी कोई इश्यू हुई है या स्टोन हुई है, तो हमको पता चलता है कि ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन के आपको क्या बताना चाहिए ताकि ये प्रेगनेंसी में आप वो तकलीफ से बच सकते हो। फिर जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दो बड़े दुश्मन होते हैं। अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है पेशेंट को पहले तो हमको इतना डर नहीं लगता है, पर अगर पेशेंट बताता है कि नहीं हमको पहले बीपी हो गया था आगे वाली प्रेगनेंसी में या हमारे शुगर ज्यादा आ गए थे, तो हमको डर लगता है क्योंकि ये बच्चे को भी साथ में नुकसानी कर सकता है। और अगर आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, बात तो आपको पता ही है, क्योंकि काफी लोग जो एपिलेप्सी वाले होते हैं जिनकी शादी हो जाती है वो डिक्लेयर नहीं करते डर के मारे कि शादी कहीं टूट ना जाए, तो चुपके से गोली खाते, हर रोज फिट नहीं आए उसके लिए, और जब भी हमको दिखाने आते तो हमको भी नहीं बताते कि वो एपिलेप्सी का गोली खा रहे हैं। अभी सभी एपिलेप्सी का गोली प्रेगनेंसी में नहीं चलेगा, कई गोली ऐसे होते हैं जो चेंज करने पड़ते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, वो हर एक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल जो दवाई होती है वो प्रेगनेंसी में नहीं चलती है, प्रेगनेंसी की अलग होती है। जैसे डायबिटीज की गोलियां है वो हर एक गोली नहीं चलती है, सिर्फ 1 या 2 गोली काम करती है और फिर कंट्रोल में नहीं होता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगता है। तो इसलिए आपको ये डिटेल एग्जामिनेशन में सब कुछ बताना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सोनाली। सो ये हाई रिस्क, अगर मैंने आपको बताया कि चलो आपका प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में दवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशंस, सब जांच, सोनोग्राफी इतनी बढ़ गई है कि बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेशंस हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए उससे डरने वाली बात नहीं है। कोई एंजाइटी नहीं रखनी है कि मुझे ऐसे हो गया तो मेरा बच्चा कैसे होगा, मुझे टीबी हो गया मैं टीबी का दवाई खाया है तो मेरा बच्चा सही आएगा कि नहीं,
या तो मैंने पहले ये दवाई खाई थी, मैंने बार बार गोली खा के बच्चा गिरा दिया है, वो तब नहीं चाहिए था, तो अब ये बच्चा बराबर होगा कि नहीं। तो ये तरह तरह के सवाल आपके मन में पैदा होते हैं। अगर ये आप हमसे शेयर करोगे तो हम आपकी एंजाइटी दूर कर सकते हैं और किसी भी चीज से डर नहीं रखता है। ज्यादातर लोग अगर बता दो कि थायराइड है, आपको थायराइड का गोली खाना पड़ेगा, उनको पसंद नहीं है कि मैडम ये लाइफ लॉन्ग खाने का, ये मुझे नहीं खाना है, मुझे डर लगता है, मुझे ये थायराइड का गोली नहीं खाना है, मुझे ये बीपी का गोली नहीं खाना है। तो वो गलत बात है। जितना आप अपने आप से एक तरह से मोल्ड कर लोगे अपने आप को कि प्रेगनेंसी मेरी है और मुझे ये वाली कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में आई है, तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सेप्टेंस से आपकी हेल्थ को बहुत ही बढ़िया फायदा होने वाला है। तो ये जरूरी होता है कि हम अगर आपको हाई रिस्क लेबल करते तो आप दूसरी प्रेगनेंसी से अलग हो, पर ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए टेंशन या फियर किया जाए, सबके सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, आप सबको पता है ना, सब डॉक्टर्स बोलते हैं अगर आप गूगल पे इतना पढ़ लेते तो मेरे पास क्यों पूछते हो। पर मैं अलग बताती हूँ, मैं ऐसे बताती हूँ कि आप गूगल पे पढ़ लो, सब गूगल पे जाके अच्छे वाली साइट्स पे पढ़ के आओ, और जो आपको नहीं समझ में आता है ना वो हमसे पूछो। तो ये गूगल पे सब इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है और सबकी समझ सही नहीं होती है। सोचो गूगल पे कोई भी एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि इतना ग्राम प्रोटीन प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, अभी सबके लिए वो ट्रू नहीं है। इतना वजन प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए, तो सबके लिए वो ट्रू नहीं है। कोई अपनी प्रेगनेंसी 40 किलो वेट से शुरू करता है, कोई अपनी प्रेगनेंसी 80 किलो वेट से शुरू करता है और कोई 90 किलो वेट से। तो हर एक को 15 किलो 12 किलो वजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो गूगल की जो इंफॉर्मेशन है वो जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन है, वो इंडिविजुअल आपके लिए स्पेसिफिकली बनी हुई इंफॉर्मेशन नहीं है, और वो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए आप पढ़ो, मैं तो बिल्कुल मना नहीं करती। आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल माय पेशेंट्स रीड गूगल एंड कम टू मी, हाफ ऑफ माय प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। फिर उनको जो भी कुछ समझ में नहीं आता है वो ही मेरे लिए बाकी रह जाता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इट इज टाइम सेविंग फॉर, मैं सामने से ही बोलती हूँ कि चलो आपको पीसीओएस है, आप गूगल पे पूरा पीसीओएस पढ़ के आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि गूगल आपके लिए एडवांटेजेस भी है। जैसे अगर आपको डायबिटीज है प्रेगनेंसी में, आप गूगल करके चेक कर सकते हो कि आप, जैसे हम बताते हैं शुगर्स कम कर लो, शुगर नहीं खाने, तो कोई आके पूछता है गुड़ खा सकते हैं, कोई आके पूछता है शहद डाल सकते हैं। कम से कम महिलाओं को इन चीजों का सेवन करना चाहिए। कम से कम आपको ये तो पता रहेगा कि गूगल पे लिखा है कि इतनी चीजों का सेवन मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है और ये नहीं खाना है, मुझे नमक कम खानी है, शुगर कम खानी है, ये मेरे बेनिफिट के लिए है। तो आई एम हैप्पी इफ पेशेंट्स गो एंड गूगल, दैट्स परफेक्टली गुड विथ मी, बट एट द सेम टाइम इट मे नॉट बी सो गुड विथ ऑल अदर डॉक्टर्स। कोई डॉक्टर्स गूगल पे पेशेंट पढ़ के आता है और 4 पेशेंट ज्यादा पूछ लेते हैं तो चिढ़ भी जाते हैं। तो आपको तकलीफ है जिस चीज की, उस पर ही आप गौर करो। दूसरे क्वेश्चंस या दूसरे डॉक्टर के पास आप जब भी जाओ तो ये क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों होता है, इससे क्या तकलीफ होती है, आपको जो सही लगे, जो डॉक्टर आपको बताए वो ही करो। दूसरे किसी को कुछ तकलीफ हुई है उसकी चिंता आप मत करो। सो आई वुड पर्सनली फील कि गूगल पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है जितना आजकल की जनरेशन दे रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड सोनाली। हाँ, जैसे मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन कोई नॉलेज नहीं होता है। हर एक के लिए वेट गेन अलग होता है, हर एक के लिए ब्लड प्रेशर की गैलरी अलग होती है, हर एक के लिए शुगर लेवल्स अलग होते हैं, और जिसका वेट ज्यादा होता है उसको, जिसको कभी पहले स्पाइन में प्रॉब्लम हुई है उसकी बैक एक की ट्रीटमेंट अलग होती है। अगर आपको अभी बैक एक हुआ है, वो प्रेगनेंसी बैक एक भी हो सकता है, या पहले से स्पाइन की प्रॉब्लम से भी बैक एक हो सकता है, या तो ये मस्कुलर बैक एक, स्केलेटल मस्कुलर बैक एक, आपने कुछ भारी वजन उठा लिया है, आपने कहीं कोई पोजीशन में गलत बैठे हो आप लंबे टाइम तक, तो कई चीजों से बैक एक होती है। तो एक इंफॉर्मेशन जो होती है वो नॉलेज नहीं होती है, वो इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है, और वो आपको कोई काउंसलर से, कोई कंसल्टेंट से या किसी एक्सपर्ट से ही उसकी सॉल्यूशन मिलेगी। तो मेरा भी ये मानना है कि जो गूगल की इंटरप्रिटेशन है, कम से कम वो आके पूछ लो कि मैडम मेरी समझ में ये आया है, ये बराबर है कि नहीं है। तो कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा बताने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड सोनाली। ओके, सो ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की बात चल रही है वो ये नहीं है कि चलो ये ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का दवाई खा लो तो प्रेगनेंसी सही हो गई, नहीं। ये प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, बच्चे तक खून कम पहुंचता है। आपने सुना होगा काफी बार कि अंदर पानी कम हो गया, सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई कि अंदर वाटर लेवल कम हो गया। ये क्या है, ये वाटर लेवल कम किस चीज से होता है, या तो फिर वाटर लेवल बढ़ गया, ये कैसे होता है। तो नॉर्मल वाटर लेवल जो होता है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी का जैसे 10 to 12 उसका इंडेक्स होता है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, जैसे मदर को बहुत लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर है और अंदर पानी कम हो रहा है, तो वो अच्छी निशानी नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को कम न्यूट्रिशन मिल रही है, इसलिए बच्चे का पानी कम हो रहा है, बच्चा अंदर सूख रहा है। उसको आपकी नाल से, यूट्राइन आर्टरी से, जो प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए वो कम मात्रा में मिल रही है, चाहे वो 10% कम हो सकती है या 50% भी कम हो सकती है। अगर ये न्यूट्रिशन बच्चे को बहुत कम पड़ता है तो बच्चे की डेवलपमेंट हैम्पर करता है, बच्चे के ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसकी ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। हम पूछते हैं बच्चा कितना घूमता है, हम बताते हैं पेशेंट को डीएफएमसी करो, डीएफएमसी। हर एक के पास सोनोग्राफी के लिए बार बार जाने की सुविधा नहीं होती है। हर एक पेशेंट कोई दूर रहता है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर रहता है, वो बार बार सोनोग्राफी के लिए और डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है। तो हम उनको सिखाते हैं कि डीएफएमसी, डेली फीटल मोमेंट काउंटिंग। सुबह में आप नाश्ता कर लो, थोड़ा रूम में टहलो, फिर शांति से सोफे पे या रिक्लाइनर चेयर पे बैठो, पेट पे हाथ रखो, बच्चा आपको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स देगा, बच्चा 3 से 4 बार कम से कम घूमेगा। ऐसे ही लंच के बाद आप थोड़ा टेबल का सफाई कर लो, थोड़े वाटर बॉटल्स भर लो, फिर आराम से बैठो, फिर बच्चा दोपहर में घूमेगा। ऐसे ही रात को डिनर के बाद अगर पूरे दिन में बच्चे के आप 4+4+4 12 मोमेंट्स फील करते हो तो बच्चा एकदम मजे में है। अगर हमको पता रहता है कि ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो रही है तो हम आपको ये सिखा सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस पहले से पता होने से उसकी प्रिवेंशन की जाती है। एक बार सिवियर हो गया, डैमेज हो गया, जैसे बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बहुत सूजन हो गई, मदर को कन्वर्जन आ गया, फिट आ गया, मदर को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, फिर आप उसको आइडेंटिफाई, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आइडेंटिफाई कर, डैमेज इज ऑलरेडी डन। तो हम ये डैमेज प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको बताते हैं, ना कि आपको डराने के लिए। तो इससे डरना नहीं है, पर आपको पता चले कि ये हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है, तो मुझे इतना ध्यान रखना है, मुझे इतने घंटे सोना है, मुझे इतना आराम करना है, मुझे इतना वॉक करना है, मुझे इतना ही वेट बढ़ाना है। ये जरूरी होता है ये कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कॉमनली स्पॉटिंग हुई, ब्लीडिंग हुई, पेट में थोड़ा दर्द हो गया, अगर थायराइड है तो ये सब कॉमन होता है। अगर बच्चा का धड़कन नहीं आया तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है, जैसे पीसीओएस वाले को शुरू में थोड़ा हार्मोन का हेल्प चाहिए, सप्लीमेंटेशन चाहिए, तभी बच्चे की धड़कन आती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर यूजुअली द कॉम्प्लिकेशंस, और वो प्रेजेंट करता है ब्लीडिंग से, या तो पेन से, या तो बच्चे का धड़कन नहीं आता है, उससे हमको पता चलता है कि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादातर एबनॉर्मलिटीज जो बनती है बच्चे में, किसी के हाथ पांव ठीक से नहीं होते, किसी के सर में कुछ ब्रेन डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, किसी की किडनीज, एक्टोपिक का मतलब है अलग जगह पे होना, नॉर्मल जगह से अलग जगह पे होना, उसको एक्टोपिक किडनीज बोलते हैं। किसी के पेट की दीवार, बच्चे के पेट की दीवार नहीं बनती है। किसी को तो आप बिलीव नहीं करोगे, 5 महीने जाके जब पहली सोनोग्राफी कराते तब भी पता चलता है अरे मुझे तो ट्विंस है। तब तक तो उनको पता ही नहीं होता है, क्योंकि जो छोटे छोटे गाँव में लोग रहते हैं वो वहाँ सोनोग्राफी की सुविधा नहीं होती है, वो बड़े शहर में सीधे 5 महीने में एक बार दिखाने जाते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो सकते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादातर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर,
फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो सांस फूलने लगती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है तो पूरा शरीर सूज जाता है, वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, किडनी की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और सोडियम कम हो जाता है तो पेशेंट ड्राउजी रहने लगता है। तो बच्चे की ये सब चीजों से बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होती है। आपने सुना होगा कि किसी को पैदाइशी हार्ट में होल होता है, वो लड़की बड़ी होती है, उसकी हार्ट सर्जरी होती है, फिर उसकी काफी सारी दवाई चलती है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। अभी उसको बच्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हार्ट में स्टेंट डाले हुए हैं तो आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चे के ग्रोथ को इसमें डैमेज होगा कि नहीं होगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में, पिछले 3 महीने, तो पिछले 3 महीने के कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए द बॉटम लाइन इज कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आप प्रिवेंट करना चाहते हो या आगे प्रेगनेंसी में कोई मिसहैपनिंग हो गई है, कुछ खराब हो गया है, उसको आप करेक्ट करना चाहते हो तो आपको अपने डॉक्टर से रेगुलरली विजिट पे जाना चाहिए और सब बताना चाहिए, तब भी अपन ये सब कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जैसे पहले 3 महीने में हम क्या स्क्रीन करते हैं, प्रेगनेंसी सही है, बच्चे का धड़कन आ गया, फिर 2.5-3 महीने में एक सोनोग्राफी फिर से करते हैं, बच्चे की नाक दिख रही है और ब्लड से टेस्ट करवाते हैं कि ये अपना बच्चा डाउन सिंड्रोम ज्यादातर उन लोगों को, उन बच्चों में होता है जो आपने कभी सुना होगा, कोई स्पेशली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनका स्पेशल स्कूल चलता है, मेंटली चैलेंज बच्चे बोलते हैं, जो इतने होशियार नहीं होते, उनका IQ लेवल कम होता है, उनका फिजिकल ग्रोथ भी कभी कभी बहुत कम होता है, तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से होता है। जो नॉर्मल क्रोमोसोम मेकअप है नॉर्मल लड़की का वो 46XX होता है, नॉर्मल बॉय का जो होता है 46XY होता है। तो ये ट्राइसोमी 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और XXX होता है, उसमें 0 XX तो ये डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें बच्चा, आप देखो ना तो बच्चे को देखते ही आपको पता चल जाए कि ये बच्चा मेंटली एबनॉर्मल है। और फिर एक अर्ली टारगेट स्कैन भी होता है कि हार्ट के चैम्बर या फ्लो बराबर है कि नहीं। फिर सेकेंड हाफ में हम स्क्रीन करते हैं कि पानी का भाग सही है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कि चलो भाई देख लो इसका नीचे का रास्ता सही है, उसको टाका लगेगा कि नहीं, कि ये प्रीटर्म डिलीवरी कर जाएगा, ये 9 महीने आराम से पहुंच जाएगा। और हम आपको बताते हैं कि अगर ये प्रीटर्म डिलीवरी होना है तो आपको क्या मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, टाका लगाना पड़ता है, 5 महीने के बाद में आराम करना पड़ता है। आपने सुना होगा कितने सारे लोगों को बेड रेस्ट आती है प्रेगनेंसी में, तो इसीलिए इसकी स्क्रीनिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड। और आगे जैसे ये आप पढ़ सकते हो, साइकोलॉजी इन प्रेगनेंसी, पास्ट इज रेफरेंस, आपको प्रेजेंट में जीना है कि अभी क्या है, अभी क्या है, अभी मैं क्या बेस्ट दे सकती हूँ बच्चे को, और फ्यूचर के कोई भी कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको प्रिपेयर होना है। जैसे अगर आपको थोड़ी ब्लड प्रेशर रही तो आपको हम बता देते हैं ये बढ़नी नहीं चाहिए, अगर बढ़ गई तो कन्वल्शन आती है, ICU में एडमिट होना पड़ता है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इतनी दवाई खानी पड़ती है, तो हम आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है, हमको पता है कि ज्यादातर ट्विन्स प्रीटर्म डिलीवर कर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनकी क्या केयर होनी चाहिए, बाद में उनको ICU में जाना पड़ता है, तो हम आपको इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Thank you. So now I would request Sonali to take over from here, and in case I think I will have some more time, so I can join you 10-15 minutes later if there are any questions. So अभी एक्सरसाइज जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर आप मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप वॉकिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, लेकिन वॉक इस तरह आपको नहीं करना कि आप मतलब जस्ट घूम रहे हैं और बातें कर रहे हैं। आपको वॉक इस तरह करना है कि आप बिल्कुल वॉक पे फोकस कर रहे हैं, ब्रेथलेस नहीं होना है, आपको सांस अच्छे से लेनी है, लेकिन आपको ब्रिस्क वॉक करना है। शूज वगैरह ढंग के पहनिए और वॉक वगैरह करने से पहले आपको कुछ हेल्दी सा छोटा सा स्नैक जैसे फ्रूट या छोटा सैंडविच जैसे कुछ आपको खा करके जाना है। एंड कैरी अ बॉटल ऑफ वाटर, मतलब पानी तो प्रेग्नेंट विमेन के लिए जैसे गंगा जल है, यू नो, यू हैव टू रियली कॉल इट एज अमृत, बिकॉज जैसे मैम बता रही थी इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, एंड आई एम श्योर सुन के ऐसा लग रहा होगा, ओ माय गॉड, थैंक गॉड मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको अवॉइड करना है,
एंड ड्रिंकिंग वाटर मेंटेन्स आपके एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स को, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता, और अगर डिहाइड्रेशन नहीं होता तो एमनियोटिक फ्लूइड लेवल सही से मेंटेन होते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर द बेबी। ठीक है, तो अब अगर आप मैट वगैरह ले आए हैं अपने पास तो मेरे साथ शुरू करते हैं, हम एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। एक्सरसाइज के कुछ जैसे डॉक्टर से पूछ करके अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको एक्सरसाइज मना की जाएगी, पर अदरवाइज नॉर्मली हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक्सरसाइज बिल्कुल अलाउड रहती है। तो अब सिंस ये दिस इज लाइक अ डेमोन्स्ट्रेटेड सेशन, तो हम ऑब्वियसली हर चीज के कुछ 3-4 काउंट्स करेंगे और मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये कौन से पोजीशंस आपके लिए सही हैं। तो थोड़ा सा वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप एक जगह पे मार्च कर लीजिए एंड आप कंफर्टेबल शूज पहन लीजिए, या अगर आप इस तरह घर पे नॉन स्लिप योगा मैट पे कर रहे हैं तो आप विदाउट शूज भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आर्म्स मूव करते हैं तो इससे आपके थोड़ा सा कार्डियो वर्कआउट भी हो जाता है। तो मार्च इन प्लेस एंड मूव योर आर्म्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? एक्सरसाइज से आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। तो जो आर्म एक्स, पेन्स, डिस्कम्फर्ट्स, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी काफ में क्रैम्प्स आ रहे हैं, ये सब आपके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो हम पहले सर्कुलेशन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज जो करते हैं वो स्लोली करें, क्योंकि अगर आप जल्दी में करेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट? तो स्लोली करेंगे, हम हेड टू टो जाते हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे, राइट? तो एक आराम से अपना पोस्चर सही करके स्लोली ड्रॉप योर चिन टू योर चेस्ट, फिर ड्रॉप योर हेड बैक, once again chin to chest and drop your head back, right? फिर हम फुल सर्कल्स करते हैं, chin to chest, left ear to left shoulder, back of the head to the back, right ear to right shoulder, chin to chest, and reverse, right, back, left and chin, right? फिर हम शोल्डर सर्कल्स करेंगे, नाइस एंड राउंड, 1 2 and 3. अब हम इसको रिवर्स करते हैं, 1 2 and 3, राइट? कुछ स्ट्रेचेस आपके आर्म्स के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो अपर एब्डोमेन एरिया है उसको अच्छा सा स्ट्रेच मिल जाता है। सो फर्स्ट इज क्रॉस योर आर्म अक्रॉस, होल्ड द स्ट्रेच। तो ये पूरा स्ट्रेच इधर आया है, दूसरा हाथ अभी स्ट्रेच अप एंड ऑपोजिट साइड, राइट, एंड बैक साइड, इसको हम जिपर स्ट्रेच बोलते हैं, एंड दूसरा हाथ, एंड अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों आपके हाथ लेके पीछे, जैसे आप रिवर्स नमस्ते करेंगे, एक मिनट, हम आशुतोष को भी म्यूट कर देते हैं। ऑलराइट, अब दूसरी चीज हम ये करेंगे अपने हैंड्स के लिए। तो कई बार क्या होता है, हाथों में सूजन, थोड़ा सा नमनेस, ऐसे फीलिंग आती है, तो हाथ को इस तरह स्ट्रेच एंड फिस्ट, 2 एंड फिस्ट, 3 फिस्ट, एकदम टाइट, एकदम ऐसे जैसे आपके को किसी ने सोने का सिक्का दिया हो, 4 एंड ट्विस्ट, राइट? अब मुट्ठी को हल्का पकड़ के सर्कल, स्लोली, 1 2 3 and 4, and reverse the circle, 1 2
3 and 4, राइट? तो ये हो जाते हैं आपके हाथों के लिए वगैरह। अब दूसरी एरिया जो होती है, जो प्रेगनेंसी में चेंज होती है, उसको हम आपके चेस्ट साइड यानी कि ब्रेस्ट बोलते हैं। ब्रेस्ट में वजन बढ़ना शुरू होता है। प्रिपरेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे सैगिंग होती है। अब सैगिंग किसको पसंद, राइट? बिकॉज आगे चल के डिलीवरी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, आई वांट टू वेयर ऑल माय गुड क्लोथ्स, राइट? तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको हेल्प करेगी। पहला, just take your hands and stretch it up as high as you can. जब आप ये करते हो तो आपको एकदम यहाँ पे लिफ्ट हो जाता है, उसको एकदम होल्ड करके रखिए and then release. We'll try one more time. Take it up, stretch and release. Okay? एक और एक्सरसाइज दिखा देती हूँ आपको आपके चेस्ट के लिए, which is very helpful. दोनों हाथ इस तरह सामने ले आइए एंड एक हाथ को दूसरे हाथ से आपको फाइट करवाना है, जैसे आप एक हाथ को दूसरे हाथ से पुश कर रहे हो। जब आप ये करते हो तो आपको स्ट्रेच यहाँ पर फील होता है फ्रॉम द साइड ऑफ योर चेस्ट वॉल। सो लेट्स ट्राई इट। पुश एंड रिलीज, पुश एंड रिलीज, पुश एंड रिलीज, राइट? तो ये कुछ स्ट्रेचेस हैं जो आपको अपर बॉडी में आपके लिए हेल्प करेंगी। अब कुछ पोजीशंस होते हैं, कुछ अलग से स्ट्रेचेस होते हैं जो हम डरते हैं करने के लिए, लेकिन ये प्रेगनेंसी में अलाउड है। जैसे कि अगर आप साइडवेज ट्विस्ट करना चाहते हैं, अगर आप ये करते हैं तो ये बिल्कुल अलाउड है, और दूसरी तरफ ये आपके वेस्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड रिलीज। अब साइडवेज भी आप बेंड कर सकते हो, फॉरवर्ड बेंड नहीं कर सकते, बट साइडवेज आप जरूर बेंड कर सकते हो। तो स्ट्रेच एंड रिलीज एंड स्ट्रेच एंड रिलीज। लवली, राइट? अब मैंने आपसे कहा फॉरवर्ड आप बेंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बैक को फ्लैट रख के हाफ बेंड करते हो तो ये अलाउड है, राइट? तो लेट्स सी, बिल्कुल इस तरह स्ट्रेच। अभी अगर आप मेरी बैक देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ टेबल। इसके ऊपर आप कॉफी का कप रख सकते हो, रखना मत लेकिन रख सकते हो, राइट? एंड रिवर्स। ये आपके लोअर बैक के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, राइट? अगर आप फ्लोर से कुछ उठाना चाहते हो तो बेस्ट यही है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आप स्क्वाट करके, मतलब इस तरह से स्क्वाट करके उसको आपको फ्लोर से उठा लेना है, राइट? लेकिन अगर आप बेंड करते हो तो इस तरह बेंड नहीं करना, क्योंकि इससे आपके एब्डोमेन पे असर पड़ जाता है, राइट? अब प्रेगनेंसी के टाइम पे एक और चीज बहुत ही मायने रखती है, लेबर। हमको सबको डर है कि डिलीवरी कैसे होगी, पेन होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो पेनलेस डिलीवरी वगैरह के बारे में तो डॉक्टर आपसे बात करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज जो आपको हेल्प कर सकती है, कुछ एक्सरसाइजेस हैं। एक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, रेगुलरली आपको वॉक पे जाना चाहिए, राइट? अब दूसरी एक्सरसाइज जो आपको लेबर में हेल्प करेगी वो है आपके स्क्वाट्स, राइट? तो आप स्क्वाट्स कैसे करेंगे? ये आपको अपने लेग्स बिल्कुल इस तरह से वाइड दूर करने हैं, जितना आप स्प्रेड कर सकते हो। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप मैट पे रहें। अगर आप ये फ्लोर पे करेंगे तो आपके पैर फिसल सकते हैं, राइट? तो आप बिल्कुल अपने लेग स्प्रेड कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा तो आप अपने लिए कोई सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कोई मजबूत कुर्सी या दीवार, आप सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, आपको हल्के से स्लोली इस तरह स्क्वाट करना है एंड अप, ठीक है? एंड डाउन एंड अप, 3 एंड अप, 4 एंड अप, राइट? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने तो सिर्फ 4 ही काउंट्स दिखाए हैं, और आपको पोजीशन और पोस्चर तो वीडियो पे मिल ही जाएगा।
जब आपके पास लिंक आएगा। बट मेन पॉइंट ये है कि जब आप स्टार्ट करते हो आपको सिर्फ 8 या 10 काउंट्स करने चाहिए, लेकिन जल्दी ही 10 के 12, 12 के 16, 16 के 20 आप उसको इंक्रीज करते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है आपको अपने काउंट्स भी इंक्रीज करने चाहिए। मेरे रेगुलर क्लासेस चलते हैं मुंबई में एंड हमारे गर्ल्स यहाँ पे 80, 100 स्क्वाट्स भी कर लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सुपरविजन है, मोटिवेशन है, साथ में करते हैं तो उसमें बहुत ही फर्क पड़ जाता है, राइट। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है जो आपको लेबर में बहुत ही हेल्प करेगी, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाइज, राइट। अभी बटरफ्लाइज करने के लिए मैं फ्लोर पे शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैं आप जरा अपना स्क्रीन को चेंज करके फ्लोर की तरफ ले चलती हूँ ताकि आपको मेरी पोजीशन अच्छे से दिखाई दे। राइट, परफेक्ट। तो अब ये होते हैं जैसे आपके लेग्स है बिल्कुल स्ट्रेट, आप इनको इस तरह फोल्ड करके इस तरह आपको अपनी तरफ पेल्विस की तरफ अपने ग्रोइन की तरफ खींच लेना है। तो जितना आप उसको नजदीक कर सकते हैं उतना बेटर, जितना आपके नीज नीचे जाते हैं उतना बेटर, राइट। मेरा तो जनरली रिकमेंडेशन यही रहता है कि बटरफ्लाई पोजीशन करते वक्त आपको, आप टीवी देख सकते हो, आप फोन पे बातें कर सकते हो, आप दूसरा कुछ काम कर लो ताकि आपको पता ना लगे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आप एज एन एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो जब आप बटरफ्लाई करना चाहो तो दो तरह मेथड्स होते हैं, एक आप एंड डाउन, 2 एंड डाउन, 3 एंड डाउन, 4 एंड डाउन, राइट। या तो अगर आप इसको रैपिडली करो, मतलब जल्दी, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। तो ये सारे जो पोजीशंस हैं वो आपको, सेकंड जो ये एक्सरसाइज है वो आपको लेबर के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। अब तीसरी एक्सरसाइज जो लेबर में बहुत ही काम आती है, इसको हम बोलते हैं लेग रेजेस। अब लेग रेजेस आपको कैसे कर रहे हैं, लेट मी शो यू। आप एक साइड पे लेट जाइए, मैं एक साइड दिखा रही हूँ आपको, आपको दूसरा साइड खुद करना है। आप एक साइड पे लेट जाइए, आपने अपना लोअर लेग इस तरह से फोल्ड कर लिया, स्ट्रेट नहीं रखना है, फोल्डेड रखना है, राइट। अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखिए, कीप योर बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो आपका अपर लेग है दैट शुड बी स्ट्रेट, ओके। अब आप अपने आप को इस तरह से बैलेंस करके जो अपर लेग है उसको फुल 90 डिग्रीज तक ऊपर ले जाइए, डाउन एंड अप, डाउन and up, down and up, down and up, and relax. Again, मैं तो डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ, मैंने आपको एक लेग दिखाया, दूसरा लेग आपको खुद करना है, प्लस मैंने 4 ही काउंट्स किए हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हो हर लेग के लिए आप कम से कम 8 to 10 काउंट्स जरूर करिए, राइट। एक पोजीशन है जो लेबर के लिए नहीं है, बट जैसे क्योंकि स्टैंडिंग में मैं आपको दिखा नहीं सकती थी, कैमरा एंगल चेंज करने की जरूरत थी, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये आपके काफ्स और एंकल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जिस तरह से क्या पैरों में स्वेलिंग होती है, काफ्स में क्रैम्प्स आते हैं, ये सारी इश्यूज हमको होती हैं, तो हमको ये वाली एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। तो पहले हो जाता है पॉइंट और फ्लेक्स, पॉइंट, अपने आप टोज को पॉइंट कर रहे हो, फ्लेक्स, पॉइंट, फ्लेक्स, पॉइंट, फ्लेक्स। अब आप इसको सर्कल कर सकते हैं, सो सर्कल 2 3 एंड 4, एंड इस सर्कल को आप रिवर्स कर दीजिए। तो ये आपके काफ और एंकल में अगर कभी सूजन होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो ये सब आपको कम पड़ेंगे, राइट। एक और एक्सरसाइज आपने बहुत ही पॉपुलरली सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं कैट एंड कैमल पोज, एंड ये आपके बैक के लिए बहुत ही हेल्पफुल है।
तो ये भी लेबर के लिए तो कोई मायने नहीं रखेगी, बट प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, राइट? तो लेट्स सी कैसे करते हैं। वी गेट ऑन टू ऑल फोर्स। अब ये आपके आर्म्स आपके शोल्डर्स के नीचे हैं और आपके नीज जो हैं वो हल्के से दूरी पर हैं, तो हम इनको बोलते हैं हिप डिस्टेंस अपार्ट, राइट? जितने दूर आपके हिप्स हैं उतने ही दूर आपके नीज भी रहेंगे। आपकी बैक टू टेबल टॉप, आप इस पे कॉफी रख सकते हैं, राइट? दैट्स योर पोजीशन। अब आपको करना ये है कि स्लोली, जैसे बिल्ली अगर नाराज हो जाती है, आर्च योर बैक एंड लुक अप एट द सीलिंग, राइट? तो आपके लोअर बैक में एक बोल, जैसे एक कटोरी बन गई, ठीक है? अब हम करेंगे राउंड, दैट इज कैमल। कैमल का हम, सो राउंड। अब अपर बैक में कैमल का हम्प बन गया। एक और बार करते हैं, आर्च एंड राउंड, आर्च एंड राउंड, राइट? जब आप इस पोजीशन से बाहर निकलते हैं तो आप इस तरह बैठ जाइए। योगा में इसको पॉपुलरली वज्रासन भी बोलते हैं, और वज्रासन पोजीशन में बैठने से हाजमा बहुत ही ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसका मतलब एसिडिटी, जो थोड़ा सा नौशिया फीलिंग वगैरह, वो काफी कम होता है। तो खाने के बाद अगर आपके पास समय है, खास करके अगर आप वर्किंग नहीं है, आप घर पर हैं, तो 15-20 मिनट्स इस पोजीशन में बैठना कैन बी वेरी हेल्पफुल। इफ इट इज डिफिकल्ट, मतलब किसी को यहाँ पे पेन होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप वहां पे पिलो रख सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू बी कंफर्टेबल ड्यूरिंग योर वज्रासन पोजीशन ऑल्सो, राइट? अब हमने वापस आना है लेबर एक्सरसाइजेस पे, और दो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस मैं आपको सिखाती हूँ। एक है कीगल्स। अब कीगल्स मैं दिखा नहीं सकती, सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसको हम बोलते हैं आपके पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। आपको इमेजिन करना है कि आपको यूरिन पास करनी है, टॉयलेट जाना है, और मैं बिल्कुल नहीं जाने दे रही हूँ। आप कैसे यूरिन होल्ड करोगे, वही मसल्स को आपको टाइट करके रिलीज करना है, टाइट करके रिलीज करना है। सिंपल, ये हो गया आपका कीगल। बट ये आपको बाथरूम में नहीं करना है, राइट? ये आपको सिर्फ इस तरह घर में एक्सरसाइज करते वक्त, या अगर आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, बड़ी सी प्राइवेट सी एक्सरसाइज है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहनी चाहिए, एब्डोमेन मसल्स नॉर्मल रहने चाहिए, राइट? रेडी? तो एक फिर से ट्राई करते हैं साथ में। होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज। हाथ की एक्सरसाइज नहीं थी, वैजिनल एक्सरसाइज है, राइट? ये सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपना हैंड यूज कर रही थी। लास्ट एक्सरसाइज जो प्रेगनेंसी में आपको रेगुलरली करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, उसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग, राइट? अब डीप ब्रीदिंग सीखने के लिए द बेस्ट थिंग इज एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, राइट? एक लंबी सांस इस तरह लीजिए कि आपका ये हाथ भी उठे और ये हाथ भी उठे, राइट? यहां तक सांस पहुंचनी चाहिए, लेकिन अपनी सांस को होल्ड नहीं करना, राइट? Should we try it together? Okay, ready? Take a deep breath in, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Simple. कम से कम 40 to 50 डीप ब्रेथ्स रोज एवरी डे। इससे आपकी लंग कैपेसिटी, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ सब बढ़ जाएगा, और आपको लेबर में इसका बहुत बेनिफिट होगा। अब लेबर की बातें करते करते अगर आपको मैं लेबर ब्रीदिंग ना सिखाऊं तो ये सेशन तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। लेबर की ब्रीदिंग थोड़ी अलग होती है। लेबर में पेन होता है, लेबर में डर लगता है,
तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, और एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो एब्डोमेन में ब्रीदिंग डीप नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम शॉर्ट ब्रेथ्स करते हैं. वील डू शॉर्ट ब्रेथ्स, राइट? और it's a little different, so इसीलिए practice is very important. So every day, जैसे मैं आज आपको सिखाऊंगी उस तरह से आपको रोज प्रैक्टिस करना है. I will do 30 seconds की contractions and मैं आपके साथ 3 contractions करूंगी, right? आप जब प्रैक्टिस करो तो आप कोशिश करके 60 to 90 seconds की contractions करिएगा, right? Ready? Just follow instructions. Take a deep breath in. Exhale. Breathe in through the nose, blow out through the mouth. So एकदम short breaths है. Abdomen में कुछ नहीं हो रहा, chest breathing है. And the contraction is gone. Take a deep breath in and relax. Relax. Contractions के बीचों बीच कोई पेन नहीं होता. एक कॉन्ट्रैक्शन जब चला जाता है तब आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का वक्त मिलता है, तो उस समय रिलैक्स करिए, ठीक है? अब दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है. टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल and switch to short breaths. Breathe in through the nose, blow out through the mouth. And the contraction is gone. So relax. क्या बताया मैंने आपको? जब कॉन्ट्रैक्शन चला जाएगा तो नो पेन, तो इस टाइम पे आपकी बॉडी को रिलैक्स, रेस्ट, रिकवर, ये सारा कुछ करने का मौका मिल जाता है. तो कर लीजिए, क्योंकि जब दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो फिर पेन होने ही वाला है. दिस इज नेचर, इट्स नेचुरल, ये सबको होता है एंड सब बेबीज इसी तरह पैदा होते हैं. तो अगर हम इससे डरेंगे तो दैट्स नॉट वर्थ इट, राइट? जस्ट रिलैक्स. एक लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल, ब्रीथ इन थ्रू द नोज, ब्लो आउट थ्रू द माउथ. And the contraction is gone. Take a deep breath in and relax. Right? अब अगर आपका 28th week यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है, तो दिस इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू. ये आपको रोज करना चाहिए. दिन में कम से कम 5 to 6 लेबर कॉन्ट्रैक्शन प्रैक्टिस. जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने तो 30 seconds करवाया क्योंकि ये डेमो है, लेकिन जो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो 60 to 90 seconds होते हैं. एंड ये आपको 60 to 90 seconds with 1 minute of break, with 60 to 90 seconds with 1 minute of break, उस तरह का साइकिल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो लेबर पेन्स आपके काफी आराम से मैनेज हो सकते हैं, राइट? अब आई एम गोइंग टू शेयर माय पीपीटी विद यू अगेन. लेट मी शिफ्ट माय कैमरा एंड When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. So, आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज भी है. जो भी आज इस सेशन में प्रेजेंट है उसके लिए कॉर्ड लाइफ और मामा अर्थ की तरफ से
एक 400 रुपीज का गिफ्ट वाउचर इज अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री। मामाअर्थ एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है फॉर स्किन एंड हेयर केयर, एंड ये आप मदर्स और बेबीज जैसे इन्फेंट मसाज ऑयल या निपल बटर्स या स्ट्रेच मार्क क्रीम वगैरह आप ये सारी चीजें अपने लिए और आपके बेबी के लिए परचेज कर सकते हैं। तो कॉड लाइफ की टीम आपके साथ टच में रहेगी और आपके साथ ये वाउचर शेयर करेगी इन अबाउट 48 to 72 आवर्स आफ्टर द सेशन। ये कुछ बुक्स हैं जो आप Amazon से ले सकते हैं। ये बुक्स मैंने लिखे हैं। प्रीनेटल फिटनेस जिसमें एक्सरसाइजेस विद पिक्चर्स फॉर प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी, पेरेंटिंग मंत्रस जिसमें बेबीज और बेबीज को संभालने के लिए जो सारे आपके सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, ये आपके आंसर हो जाएंगे। एंड जब आपके बेबीज खाना पीना शुरू करें तो बेबीज के लिए रेसिपी बुक भी है, तो आप अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हो बेबी के लिए। अब मैं क्वेश्चन बॉक्स खोलने वाली हूँ, बट लेकिन मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे वेबसाइट एड्रेस, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल, सो दैट इज द प्रेगनेंसी कोच बाय बेबी 360 डिग्रीज, ये आपके लिए मैंने लोड कर यहाँ पे डाल दिए हैं। प्लीज डू फॉलो, प्लीज सब्सक्राइब। जैसे मैंने आपसे बताया कॉड लाइफ की टीम आपके साथ टच में रहेगी। सो ये जो गिफ्ट वाउचर है, अगर आपको कॉल नहीं आया, किसी ने आपको कॉल नहीं किया, तो आप ये कुछ फोन नंबर्स मैंने आपके लिए स्क्रीन पे डाल दिए हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। तो जो फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, टोल फ्री नंबर है और SMS नंबर भी है, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप भेज सकते हैं। ये सेशन की रिकॉर्डिंग प्लस वाउचर एंड प्लस स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में अगर आप प्रेजेंटेशन लेना चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं, राइट? तो अब हम क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं। लेट्स सी। ओके, सो anybody has any questions? किसी को कोई सवाल है? जब तक कोई सवाल आते हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं शेयर कर देती हूँ। प्रेगनेंसी में जनरली रेकमेंडेड रहता है कि आप एक्सरसाइजेस जब आपका 3rd मंथ 12th वीक का प्रॉपर स्कैन हो जाता है, जिसमें प्लेसेंटा की पोजीशन, सर्विक्स की लेंथ, ये सब जब तय हो जाती है तभी आपको शुरू करनी चाहिए। तो ये स्कैन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस स्कैन के बाद आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस आप 9th मंथ तक कंटिन्यू कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लास्ट डे पे भी डिलीवरी के लिए जाते वक्त अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज से डिलीवरी जल्दी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर एक्सरसाइज किया तो मेरा लेबर जल्दी शुरू हो जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू। एक्सरसाइज से आपकी पेल्विस की स्ट्रेंथनिंग होती है, पेल्विस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इससे हम यूट्रस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये चीजें आपको मतलब ध्यान रखनी चाहिए। एक्सरसाइज से बेबी के ग्रोथ पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट बोलते हैं कि जो एक्सरसाइज करती हैं मदर्स, उससे बेबी की जो हार्ट रेट है, मेटाबॉलिज्म है, ये बेटर होती है। तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। एंड ये मतलब मैंने बहुत ही फादर्स से भी सुना है कि एक्सरसाइज से मेरी वाइफ के मूड्स अच्छे हो जाते हैं। तो जो प्रेगनेंसी में होता है ना कि मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होती है, ये सब भी बहुत कम होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये तो मैंने प्रैक्टिकली अपनी मदर्स से बहुत सुना है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमको नींद बहुत अच्छी आती है। तो एक्सरसाइज से स्लीप जो है वो आपकी वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है एंड यू कैन डेफिनेटली गेट द फुल बेनिफिट आउट ऑफ एक्सरसाइज।